Hello guys, I welcome you all to the day 246 of our series, and in today's session as well we are going to continue our learning about asking for and giving directions. So let's get started, and here is your yesterday's task where you were supposed to either write P or U in front of these examples. So let's get started by one. So the teacher marked me down. To mark somebody down means to cut down the marks, which is certainly an unpleasant situation to be in. So we are going to put you in front of first sentence. Next is I'll have to pull my socks up, which is again kind of an unhappy situation, means currently you are not working that hard and now you need to work hard. Next is my English is coming on, which is a good thing. Next is I have cut out the errors, which is again a positive thing. Next is my pronunciation is holding me back, which is not a good thing. That means it is stopping you from getting better. Next is I passed with flying colors, again a good thing to hear. Next one is the grammar goes over my head, an unpleasant thing. It will certainly make you unhappy. And the last one is my son has turned over a new leaf, which is a good thing to hear. Now let's move to the next exercise where you were supposed to complete the dialogues as well as encircle the idiom or phrasal verb you find in that particular sentence. So one example is already given. Was the dictionary expensive? So no, it was second hand, so it cost next to nothing, and next to nothing is our idiom here. Next is did she get through the exam? So yes, she passed with flying colors, and to pass with flying colors is our idiom here. Next is Ben is not doing well at school. Is he? So no, but it's not for want of trying. But it's not for want of trying. So it's not. यहाँ से complete हो जाएगा हमारा idiom. Next one is was the teacher annoyed with you? So yes, she told me off. That means she scolded me, she reprimanded me, she rebuked me. Next is did you understand the lecture? So no, I'm afraid it went over my head. It went over my head. Next is he has got to work harder, hasn't he? So yes, he needs to apply himself. Next is the writing preventing him from getting better? So yes, it is definitely holding him back. Holding him back. Next is are the boys getting better? So the answer is yes, they are showing signs of improvement, and to show the sign of improvement is an idiom. Next is Mariko actually doing some work now? So yes, she turned over a new leaf. Next is how did you do in the exam? So the answer is badly. I think they dashed down for my spelling, so I think they marked me down. Marked me down for my spelling. Next is can you understand this article? So the answer is no, I can't make head or tail of it. I can't make head or tail of it. Next is did you check your spelling? So yes, I use the spelling checker on the computer as a matter of routine or as a matter of course. And the last example is Gary working hard enough? So no, he will have to pull his socks up. Socks up. And now let's move to the next exercise where you were supposed to replace these words given in italics form
with the idioms or phrasal verbs that we learned in our last session. One example is already given. I was given a lower grade in the exam for lack of clarity, means I was marked down in the exam. So the first example is, his English is getting better. So you can say it like this: his English is coming on. Next is, I can't understand this at all. So I can't make head or tail of this at all. Third one is, she worked every night for a long period of time. So she worked night after night. Next one is, this dictionary cost me hardly anything. So it cost me next to nothing. Fifth is, I only just passed my exams. So I scraped through my exams. Sixth one is, his lack of qualifications is stopping him from being more successful. So his lack of qualifications is holding him back. Next is, I need to stop making these silly mistakes if I want to improve. So I need to cut out. These silly mistakes. Next is, my brother went to Japan 3 years ago, and again 2 years ago, and again last year. So you can simply say that my brother went to Japan 3 years running. Let me write it again. 3 years running means 3 years back to back. Next is, I could do well, but I need to work harder. So I need to apply myself. And the last example is, she has worked hard at her tennis and she is progressing very quickly. So you can say that she is progressing by or in. Both would be correct. So she is progressing by leaps and bounds. Now let's move to the last exercise, and here again you were supposed to complete the sentences. So first one is, has a teacher ever dash you off, ever told you off in the class? Next is, has a teacher ever told you that you need to pull your socks up? Next one is, have you passed any exam with flying colors? Next is, do you feel your English is coming dash, so coming on in leaps and bounds? And the B part is, do you feel your English is showing signs of getting worse? And next example is, when you are studying, are there certain things you always do as a dash of routine, as a matter of routine? And the last one is, do you feel you have a lot to show for the years you have been learning English? You have a lot of achievement. इस तरह से हो जाएगा ये. And now let's get back to our session. In our previous session, we completed this part, asking for the directions, like how to ask for the directions. You have to be polite. You have to be clear in your speech. Next is the answering of the question part. We already done this also. So what do we do if we know the answer and if we don't know the answer? We have completed both of these sections, and now we have to keep in mind these things, like while you give directions to someone, you have to use transitions. You cannot speak in one go, means continuously एक बार में ही आप पूरा उसको नहीं बताओगे. You have to use these transitions ताकि उसे समझ में आए.
कोई बात आपने कही, उसके बाद में आफ्टर दैट, उसके बाद में आप ये टर्न लो एंड देन यू हैव टू टर्न राइट एंड देन ये, फिर नेक्स्ट ये, व्हेन यू गेट टू दिस प्लेस, फिर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, देन गो दिस, फिर इस तरफ मुड़ जाना, लाइक देन गो राइट, इस तरफ मुड़ जाना, एंड फाइनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। तो इस तरह से ट्रांजिशंस को आपको यूज करना है। And the next point that you have to keep in your mind is to offer ballpark figures. अब ballpark figure क्या होते हैं? It is a kind of rough estimate of time or length of travel, कि कितना टाइम लगने वाला है ट्रैवलिंग में, कितनी डिस्टेंस होने वाली है। तो ये एक रफ एस्टिमेट जो होता है इसको हम कहते हैं ballpark figures. For example, you can say it is just around the corner, that means it is not very far. Or you can say it's a bit of away, means it takes a while, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको। और it's a 5-minute walk, आपने यहाँ पे टाइम से डिनोट किया है ट्रैवल को। it's about a 20-minute bus ride, और आप यहाँ पे किलोमीटर्स, माइल्स, इनको भी यूज कर सकते हो। तो ये एस्टिमेशंस दे दिए जाते हैं तो बेटर रहता है डायरेक्शंस के केस में। एंड नेक्स्ट इज टू यूज लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये बताने का कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप किसी और डायरेक्शन में, मीन्स आप गलत जगह पे नहीं जा रहे हो। तो लैंडमार्क्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। आप इस तरह से कह सकते हो, यू विल सी अ लार्ज क्लॉक ऑन द राइट, और यू विल पास अ गैस स्टेशन। तो जब तक वो गैस स्टेशन के पास से निकल रहा है उसको खुद को ये रहेगा कि हाँ, आई एम ऑन माई राइट डायरेक्शन। इट्स अक्रॉस द ब्लू चर्च। अब यहाँ पे देखिए कलर्ड जो बिल्डिंग्स हैं इनको भी आप यूज कर सकते हो। तो लैंडमार्क्स ये पॉसिबल है, लाइक ट्रैफिक लाइट्स, क्रॉस रोड्स, जंक्शन, लेवल क्रॉसिंग। और ये जो वर्ड्स आपको अभी शायद नहीं आ रहे इनका भी मैं बताऊंगी अभी आपको पिक्चर्स के साथ में। सो टी जंक्शन, डेड एंड। डेड एंड वो होता है मीन्स कोई ऐसी गली जो आगे जाके बंद हो जाती है, वो आगे और कंटिन्यू नहीं करती। यहाँ पे कोई ना कोई बिल्डिंग आपको मिलेगी, कोई अपार्टमेंट, किसी का घर होगा, बस ये रोड यहीं तक होगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से डेड एंड आ गया है, अब इससे ज्यादा आगे आप नहीं जा सकते, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। अंडरपास और ओवरपास ये भी अभी आपको पता चलेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या जिब्रा क्रॉसिंग। तो ये सारे अभी देखते हैं इनको। और लास्ट में देखिए स्पेसिफिक कलर्ड बिल्डिंग्स, ये बताना भी जरूरी है ताकि इजी रहे उस पर्सन को जो आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अब यहाँ देखिए, दिस इज नोन एज जीब्रा क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, दोनों आप कह सकते हो इसको। जीब्रा क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे ब्लैक और व्हाइट लाइंस होती हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेडेस्ट्रियन ये वो लोग होते हैं जो इस पे चलते हैं। पेडेस्ट्रियन उन लोगों को कहा जाता है पेडेस्ट्रियन, और क्रॉसिंग यानी उन लोगों के चलने की जगह जो व्हीकल में नहीं है, और इसको क्रॉस वॉक बोलते हैं अमेरिका में। और अब यहाँ देखिए, ये जो इस तरह का चौराहा होता है उसको कहा जाता है क्रॉस रोड। ध्यान रखना, दिस इज द क्रॉस वॉक एंड दिस इज अ क्रॉस रोड। तो ये क्रॉस रोड, और या फिर इसको इंटरसेक्शन भी कह दिया जाता है। इंटरसेक्शन मींस आपस में क्रॉस कर रहे हैं ये, तो इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है टी जंक्शन। सो ये सारी टर्म्स बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगी जब हम ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। टी जंक्शन आप देख सकते हो, इसकी जो शेप है वो एक टी की तरह होती है। तो ऐसे जंक्शन को, ऐसे इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं टी इंटरसेक्शन या टी जंक्शन। नेक्स्ट काइंड ऑफ लैंडमार्क इज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 4 ही रोड्स हों यहाँ पे और बीच में इस तरह से उनको घूम के जाना हो। 4 ही जरूरी नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होता है राउंड अबाउट, कि इसके बाहर से राउंड करके आपको जाना होता है। नेक्स्ट इज अ फोक इन द रोड। आपको पता है फोक और स्पून ये टेबल पे रखे जाते हैं, ये हमारे डिनर में काम आते हैं इक्विपमेंट। तो ये फोक कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया हमारा फोक। लेकिन जब रोड की बात आती है, अ फोक इन द रोड, तो ये उसे कहा जाता है जो 2 राह हो, मीन्स जो एक मेन रोड हो वो आगे चल के इस तरह से 2 में डिवाइड हो रही हो। ध्यान रखना, टी जंक्शन नहीं है ये। टी में तो
डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये है कि एक सीधा रोड है और उसमें आगे चल के दो अलग अलग हो गए हैं, तो ये हो जाता है अ फोक इन द रोड। इसको कई बार वाई जंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये वाई की शेप में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका साइन हो गया। नेक्स्ट है साइड वॉक। साइड वॉक रोड के साइड में जो चलने की जगह होती है पेडेस्ट्रियंस के लिए, फिर से वही जो अलग से जो लोग व्हीकल में नहीं होते उनके चलने की जो जगह होती है उसको कहा जाता है साइड वॉक। नेक्स्ट इज एले। इसमें जो y है इसको y की तरह प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे, इसको एले कहा जाएगा। और एले एक तंग गली या गलियारा सा होता है इस तरह का, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनको कहा जाता है, इन गलियों को, पतली गलियों को कहा जाता है एले। नेक्स्ट टर्म इज ओवरपास, और इसी से एक रिलेटेड टर्म हो गई हमारी अंडरपास। तो पास से देखिए, पास यानी कि क्रॉस करने की जगह, और ओवरपास यानी ऊपर से क्रॉस करना, अंडरपास नीचे से क्रॉस करना। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओवरपास इज अ सेक्शन ऑफ अ रोड और पाथ दैट इज ओवर एन ऑब्स्टिकल, स्पेशली अनदर रोड और रेलवे। यानी कि नीचे से अगर कोई रेलवे लाइन जा रही है, ऊपर से अगर रोड जा रहा है, तो ऊपर वाला जो रोड हो गया वो हमारा ओवरपास कहलाएगा। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि एक तो नीचे रोड जा रहा है और उसके ऊपर से ये जा रहा है ब्रिज शेप में, तो ये हो गया हमारा ओवरपास, हाईवे ओवरपास। और अंडरपास इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब अंडरपास में क्या होता है, इज अ रोड और अ पेडेस्ट्रियन पैसेज इन अ टनल दैट रन्स अंडरनीथ अ रोड और रेल रोड। यानी कि ये हमारा रोड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल्स को, और इसके नीचे से ये जो लोगों के जाने की जगह है ये हो जाती है हमारी अंडरपास या सबवे, और ओवरपास जैसे ऊपर से जाने की जगह। और नेक्स्ट है हमारा लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग को रेल रोड क्रॉसिंग भी कहा जाता है, जहां पे ये वो जगह होती है जहां पे रोड और रेलवे की जो लाइंस हैं ये आपस में क्रॉस करती हैं, इनको कहा जाता है लेवल क्रॉसिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है जगह ये हो गई हमारी लेवल क्रॉसिंग या रेल रोड क्रॉसिंग। अब इन डायरेक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टर्न लेफ्ट राइट आप कर लोगे। अगर आपको कहना हो किसी को कि सीधे जाइए, आप कह सकते हो गो स्ट्रेट अहेड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, जो वर्ब है एक्चुअली, वो ये है गो पास्ट। गो पास्ट। अब ये कोई बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ लाइब्रेरी, this is a library and if I say that you have to go past the library, यानी कि आपको लाइब्रेरी के आगे से गुजर जाना है, इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाना है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं गो पास्ट। ध्यान रखना, गो पास्ट टू नहीं आपको यूज करना है यहाँ पे, गो पास्ट और डायरेक्ट फिर उसका नाम देना है गो पास्ट लाइब्रेरी। गो पास्ट टू लाइब्रेरी नहीं बोलना, सो गो पास्ट लाइब्रेरी यानी कि इसके पास से निकल जाओ, गुजर जाओ इसके सामने से। क्रॉस का मीनिंग आपको पता ही है, इस तरह से। और एट द कॉर्नर ऑफ समथिंग, अब यहाँ पे ये क्रॉस रोड है, इसके कॉर्नर पे अगर कोई जगह है तो उसके लिए आप इस तरह से कह सकते हो दिस प्लेस इज एट द कॉर्नर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट टू एकदम बगल वाला, नेक्स्ट टू कि बीच में सिर्फ एक ही दीवार उनके लगती हो, एक बिल्डिंग ये हो गई, दूसरी बिल्डिंग ये हो गई, तो अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टू को, दैट ए इज नेक्स्ट टू बी। नेक्स्ट है ऑपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। नेक्स्ट बिटवीन, ये बहुत इजी था, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक तो गो पास्ट और एक ये एट द कॉर्नर ऑफ समथिंग। गिविंग डायरेक्शंस टू से गो स्ट्रेट, so there are many ways in which you can say, in which you can give direction to the other person of going straight, यानी कि आप इन सभी तरीकों को यूज करके कह सकते हो कि आपको सीधे जाना है। आप गो वर्ब को यूज कर सकते हो, लाइक गो अलोंग द रोड, गो अलोंग। ये हम तब बोलते हैं गो अलोंग समथिंग, यहाँ पे हो सकता है साइड वॉक हो, गो अलोंग द साइड वॉक, यानी कि जहाँ पे ये साइड वॉक चल रही है उसके साथ साथ चलते जाओ, गो अलोंग द रोड, गो अलोंग द रेलवे लाइन। तो गो अलोंग यानी कि उसके साथ साथ आपको चलना है, गो अलोंग। ध्यान रखना, गो अलोंग विद नहीं है, यहाँ पे विद नहीं यूज करना, सिंपल गो अलोंग द रोड, गो अलोंग द रेलवे लाइन, गो अलोंग द साइड वॉक, गो अलोंग द पार्क, इस तरह से आपको करना है। गो डाउन द स्ट्रीट,
इस गली में आगे चलते जाओ, गो स्ट्रेट अहेड, सीधे जाना है। और गो के अलावा आप कैरी को भी यूज कर सकते हो, कैरी स्ट्रेट ऑन, कि बिल्कुल सीधे ही चलते जाना है। और अगर आपको ये कहना है कि उस जगह तक जाना है एकदम सीधे, तो आप कह सकते हो until you come to this place, you have to go straight on until you come to this place। कोई भी प्लेस हो सकता है ये, कि तब तक आपको सीधे चलते रहना है। और दिस रोड विल लीड यू टू दिस प्लेस, या फिर ये रोड आपको वहां ले जाएगा, या तो आप कहिए गो अलोंग द रोड, और दिस रोड विल लीड यू अप टू दिस प्लेस। गो अप और वॉक अप द स्ट्रीट, दोनों का आप यूज कर सकते हो। अप द स्ट्रीट भी और डाउन द स्ट्रीट भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल सिचुएशन। नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड फॉर अबाउट 2 किलोमीटर्स। यहाँ पे हमने एक पैरामीटर ऐड कर दिया है फिर से। कीप गोइंग डाउन द स्ट्रीट, ये और बाकी के मेथड्स हो गए। कीप गोइंग, अच्छा कीप को भी यूज कर सकते हो, हमने अब तक यूज किया है गो, कैरी और कंटिन्यू, इनको यूज किया है। अभी आप कीप को भी यूज कर सकते हो, कीप गोइंग, और इस तरह से स्ट्रेट और आगे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं। कीप ऑन द स्ट्रेट रोड, इस पे आते हैं। अक्सर आपने इस तरह की होर्डिंग देखी होंगी रोड साइड पे, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ ही अपने आप को रखें, लेफ्ट की तरफ चलें, बाईं ओर चलें, कीप टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे कीप के बाद में योरसेल्फ, कीप के बाद में योरसेल्फ को नहीं यूज किया जाता। अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब यही है कि आप बाईं तरफ चलें, लेकिन कीप के बाद में योरसेल्फ को नहीं यूज किया जाएगा, सिंपल ये कहा जाएगा कीप टू द लेफ्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ये नहीं कहोगे कीप योरसेल्फ ऑन द स्ट्रेट रोड, आप डायरेक्ट कहोगे कीप ऑन द स्ट्रेट रोड, यानी कि सीधे रोड पे चलते जाइए। इसके अलावा आप फॉलो को यूज कर सकते हो, फॉलो द स्ट्रीट फॉर दिस डिस्टेंस अप टू दिस डिस्टेंस, या फिर अंटिल यू गेट टू दिस प्लेस, जब तक यहाँ पे पहुंच जाते हो तब तक आपको इसको फॉलो करते रहना है। स्ट्रेट अहेड ऑफ यू, स्ट्रेट अहेड ऑन द लेफ्ट, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए। पास्ट का देखिए यहाँ पे, ये पास्ट टेंस वाला नहीं है, अभी आपको बताया था गो पास्ट द बस स्टॉप। For example, this is your road and this is your bus stop. So if you are instructed to go past the bus stop, that means you have to continuously walk. आपको continuously चलते जाना है जब तक आप इसको क्रॉस ना कर लो बस स्टॉप को। Next is continue past the petrol station, means past the station and continue. इसको अगर ये पेट्रोल स्टेशन होता तो यहाँ पे भी आप इसको क्रॉस कर लेते और चलते रहते, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। ये तो थी हमारी डायरेक्शंस स्ट्रेट लाइन में जाने की। अब यहाँ पे देखिए टर्निंग के केस में डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। टर्न लेफ्ट और राइट, और टर्न अराउंड भी हो सकता है। टू टेक अ यू टर्न, इसको कहते हैं टर्न अराउंड। सो यू कैन से टर्न लेफ्ट, और यू कैन से मेक अ लेफ्ट, और यू कैन ऑल्सो से टेक अ लेफ्ट। आप टर्न, मेक, टेक, इन सभी वर्ब्स को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से पास्ट को यूज किया गया है, देखिए टर्न लेफ्ट पास्ट द बैंक, यानी कि जो बैंक है उसको आपको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाना है और उसके बाद में लेफ्ट लेना है। ध्यान देना, टर्न लेफ्ट लिखा भले ही पहले हुआ है टर्न लेफ्ट पास्ट द बैंक, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि बैंक को पास करते हुए आगे निकल जाओ, उसके बाद में आपको लेफ्ट डायरेक्शन लेनी है। आगे बहुत ही इजी है, आप एक बार रीडिंग इनकी जरूर लेना। जैसे है टर्न राइट फ्रॉम द फर्स्ट एले, यानी कि पहली गली आएगी जो, वहां से राइट टर्न ले लेना है आपको। टर्न लेफ्ट ऑन टू द डेनियल स्ट्रीट, अब स्ट्रीट के लिए हम हमेशा ही ऑन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, और इसी तरह से टर्न के अलावा गो भी हम सिंपली यूज कर सकते हैं, गो राइट या लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रोड, कि रोड जहां पे खत्म हो जाएगी, एक तरह से टी सेक्शन की बात है, तो यहाँ पे आने के बाद में यू हैव टू गो लेफ्ट और यू हैव टू गो राइट। एंड व्हेन यू सी some kind of place on your right or left side, then you have to turn to this side, इस तरह से भी आप कह सकते हो। ये 10th जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेक द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्ट्रीट टू द लेफ्ट और राइट। तो इस तरह से जब बहुत सारी स्ट्रीट्स हो जाएंगी तो उस केस में आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो दैट यू हैव टू टेक सपोज सेकेंड स्ट्रीट ऑन योर लेफ्ट, ये हो जाएगा।
यहाँ पे फिर से वही है, टेक द फर्स्ट लेफ्ट व्हेन यू एंटर दिस रोड। इस रोड पे आते ही पहली जो लेफ्ट जो टर्न आएगी वो आपको लेना है। तो इन सभी को आप एक बार पढ़ना जरूर। फर्दर डाउन द रोड ऑन द लेफ्ट, फर्दर डाउन द रोड यानी कि आगे आगे चलते जाओगे, उसके बाद में लेफ्ट पे टर्न करना है। गो और हेड, हेड को भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शंस में, हेड नॉर्थ, हेड साउथ, हेड ईस्ट, हेड वेस्ट, या फिर डायरेक्शंस को अगर हमें इन डायरेक्शंस के बजाय ऐसे जाना है तो इनको कंबाइन भी हम कर सकते हैं डायरेक्शंस को। जैसे अगर मैं कहूँ गो नॉर्थ ईस्ट, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो गो नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होती है अक्सर क्रॉस और अक्रॉस इनके यूसेज में। देखिए क्रॉस इज अ वर्ब which means cross is an action। जहां पे भी वर्ब आ जाए दैट मीन्स वो एक्शन है हमारा। अक्रॉस ये एक्शन नहीं है हमारा। तो अब देखिए क्रॉस इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन। ये एक्शन को बताने के लिए किया जाता है कि आप क्रॉस करना होगा, आपको इस पार से उस पार जाना होगा। एंड अक्रॉस इज टू से वेयर समथिंग इज। अक्रॉस जो है ये पोजीशन को बताता है। अक्रॉस फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि ये जो स्ट्रीट है, नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस दिस स्ट्रीट, मैं इस स्ट्रीट को अभी क्रॉस करने वाली हूँ। द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, और यहाँ पे ये हमारा बैंक है जो कि पहले से प्लेस्ड है, जिसकी पोजीशन पहले से अक्रॉस द स्ट्रीट है, स्ट्रीट के दूसरी तरफ है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। द बैंक इज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि दूसरी साइड, अक्रॉस द स्ट्रीट यानी ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, ऑन द ऑपोजिट पार्ट ऑफ द स्ट्रीट। नेक्स्ट इज माई हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट। अब जैसे यहाँ पे देखिए माई हाउस, दिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट एंड यू कैन क्रॉस हेयर टू गेट टू इट, यानी कि आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस जो है ये हमारा एक्शन हो गया, अक्रॉस हमारी पोजीशन हो गई जहां पे कोई चीज पहले से प्रेजेंट है। अब आते हैं आगे। And now you have to write down the list of directions that you are going to give to others to reach post office and cinema in the next exercise. So be as specific as you can. Don't forget to mention every curve or every turn that is necessary for them to reach their destination. And one more thing, you just tell the instructions about the highlighted path only, यानी कि आप सिर्फ highlighted path की instructions ही अपने नोट डाउन करोगे, not about the other means to get to their final stop। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ से चल के यहाँ जाना था और अभी आप instructions लिख रहे हो और आप ये कहो कि मैं तो यहाँ चल के इस तरह से आया हूँ, नहीं, सिर्फ जो highlighted path है आप यहाँ पे ही instructions दोगे। सिमिलरली इस केस में भी ये नहीं है कि आप इस तरह से आके और यूं जा रहे हो तो आपने बता दिया, इंस्ट्रक्शंस जो हाईलाइटेड पाथ है उसी की होनी चाहिए। ये दो एक्सरसाइजेस हो गई आपके लिए। अभी आते हैं वोकैबुलरी पार्ट पे। एंड नाउ इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू वर्क। सो फर्स्ट वन इज गेट योर फुट इन द डोर और गेट अ फुट इन द डोर। It means to make the first step toward a goal by gaining entry into some kind of organization or business। यानी कि पहला स्टेप लेना अपने गोल, अपने करियर की तरफ, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हो उस पहले स्टेप के दौरान, which could later bring you success। तो उसके लिए हम इस इडियम को यूज करते हैं। For example, if I say he took a job as a secretary to get his foot इन द डोर, यानी कि हालांकि उसने अभी सेक्रेटरी की जॉब ली है लेकिन वो चीज उसके लिए आगे सक्सेसफुल हो सकती है, तो उसके पास ये पहली अपॉर्चुनिटी थी जो उसने तुरंत ग्रैब कर ली, उसको छोड़ा नहीं उसने। तो इस तरह से इस इडियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टू टेक समथिंग और टू टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड स्ट्राइड, स्ट्राइड, स्ट्रोड and stridden, stride, strode, stridden। It means to walk somewhere quickly with long steps, यानी कि जल्दी जल्दी लंबे लंबे कदम रखते हुए कहीं जाना। This is this word's actual meaning। और अब यहाँ पे क्योंकि मेटाफोरिकल सेंस में यूज हुआ है तो इस कंप्लीट का मीनिंग हम देख लेते हैं। इस कंप्लीट का मीनिंग हो जाता है to accept and deal with something difficult without letting it worry you।
Or if I have to say this in easier words, then I would say that this means to deal with something difficult or upsetting in a calm way. In a calm way. यानी कि शांति से डील करना किसी भी डिफिकल्ट या अपसेटिंग सिचुएशन में विदाउट लेटिंग इट वरी यू, कि वो सिचुएशन आपके सर ना चढ़े, आपको उससे शांति से डील करना है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं टू टेक थिंग्स और टू टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई थॉट शी वुड बी अपसेट बट शी हैज टेकन द न्यूज इन हर स्ट्राइड. She has taken the news in her stride, यानी कि उसने इस न्यूज को बहुत ही शांति से, बहुत ही काम मेथड से सुना है. नेक्स्ट इज पिन ऑल योर होप्स. ऑल ये ऑप्शनल है, आप ऑल को यूज कर भी सकते हो और नहीं भी. सो पिन योर होप्स ऑन somebody or something. To hope that somebody will help you or that something will happen because all your plans depend on this. यानी कि आपके सारे plans जो हैं आपके एक मेथड पे डिपेंड करते हैं और आपने ये होप लगा रखा है कि ये होगा ही होगा सही. Put your trust in somebody or something. किसी एक चीज में अपना ट्रस्ट लगा देना पूरा कि हाँ ये होगा ही. So pin all your hopes or trust on somebody or something. ये इजी था. Next one is go it alone. Go it alone. To do something without the help from anyone. किसी की हेल्प लिए अकेले ही कुछ काम करना. Go it alone. Next is put all your eggs in one basket. इसका ओरिजिन इस तरह से हुआ. आप ये देखिए, कोई एक बास्केट है, इसमें बहुत सारे, आपके पास जितने एग्स हैं आपने सारे एक ही बास्केट में भर दिए ऊपर तक. जितने एग्स थे आपके पास, एक्स्ट्रा और कोई एग नहीं बचा. अब आपको इस बास्केट को एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे शिफ्ट करना है. अभी आप यहाँ पे इस बास्केट को उठा के ले जा रहे हो. अभी आप क्या कर रहे हो, आपने आप पूरा रिस्क लगा रखा है. आपके पास जितने भी एग्स थे सभी आपने एक साथ एक ही बास्केट में डाल दिए और अगर आपको हल्की सी अगर ठोकर लग जाती है तो आपके सारे एग्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे. अब आते हैं इसके एक्चुअल मीनिंग पे. To rely. Rely means to depend on only one thing for success, having no other possibilities if something goes wrong. अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा. अभी सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी पे या एक ही पॉसिबिलिटी पे आपने अपनी पूरी सक्सेस को लगा दिया है दांव पर. उसके लिए हम कहते हैं put all your eggs in one basket. And the opposite of this idiom is keep your options open. कि अपने ऑप्शंस को खुला रखो. एक ऑप्शन अगर नहीं जा रहा है, एक ऑप्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो बाकी के ऑप्शंस तो हैं आपके पास. नेक्स्ट इज कीप इन विद समबडी. स्टे फ्रेंड्स विद समबडी बिकॉज यू थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. कि आप फ्रेंडशिप रखो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, ये सोच के कि आगे चल के इससे मुझे कोई हेल्प मिल सकती है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं कीप इन विद समबडी. नेक्स्ट इज कीप योर ईयर टू द ग्राउंड. To make sure you find out about recent developments in a particular situation. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. To keep an ear to the ground means to listen or to watch out for new information or for new trends. नई नई चीजों के बारे में जानकारी होना. और इसका ओरिजिनेशन जो है वो हुआ था like this idiom originated from the literal action of placing one's ear to the ground. तो लिटरली लोग ऐसे ग्राउंड पे झुक के कान लगा के सुनने लग जाते थे in order to hear far off footsteps or other indicators like if someone is approaching to them or not. तो इस तरह से ये सारी चीजों को करने लग जाते थे because it is possible for vibrations to carry through the ground at great distances. आपको पता होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो वाइब्रेशंस जो हैं वो ग्राउंड के थ्रू पास होती हैं एक डिस्टेंस से एक डिस्टेंस पे. तो अगर आप कान लगा के सुनते हो, इसी तरह से आपने अगर देखा हो मूवीज में या कभी ट्राई भी किया हो, जो रेल की पटरियां होती हैं उन पे अगर हम कान लगा के सुनते हैं तो दूर से हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है. तो इसी तरह से कीप योर
ईयर टू द ग्राउंड, ग्राउंड से अपने कान लगा के रखो, यानी कि आपको दूर दूर की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी न्यूज है वो सारी आपको पता होती रहे, सारी आपको पता चलती रहे, आप अपडेटेड रहे रिसेंट डेवलपमेंट, रिसेंट इंफॉर्मेशन, रिसेंट ट्रेंड से। ये होता है कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। नेक्स्ट इज ऑन द ग्रेप वाइन। एक्चुअल में ये कंप्लीट इडियम इस तरह से है, ये हाफ है यहाँ पे, टू हियर something or to hear a news through the grapevine, through the grapevine। आप जब नोट डाउन करो तो इस तरह से नोट डाउन करना है इसको, to hear something through the grapevine by talking in an informal way to other people। इसको आप मत लिखना, जो यहाँ पे है इसे आप पढ़ना एक बार, through an informal means of information। और गॉसिप, बेसिकली गॉसिपिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू हियर समथिंग थ्रू द ग्रेप वाइन, लाइक टू हियर द न्यूज फ्रॉम समवन हु हर्ड द न्यूज फ्रॉम समवन एल्स, कि एक पर्सन ने कोई न्यूज सुनी, उसने किसी और को बता दी, इसने किसी आगे वाले को बता दी, इसने किसी नेक्स्ट को बता दी, तो ये पूरी बेल बन गई है इस तरह से। ग्रेप वाइन वो बेल होती है जिसपे ग्रेप्स लगते हैं, तो एक ग्रेप वाइन की तरह से बन गई है, आगे से आगे इंफॉर्मेशन चलती जा रही है, तो ये क्या है, गॉसिप जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से अगर आपको कोई चीज पता चलती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन दैट ही वॉज लीविंग, इज इट ट्रू? सो ही वॉज लीविंग, कि ये मुझे ग्रेप वाइन से पता चला है, यानी कि एक के थ्रू दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से मुझे पता चला है। नेक्स्ट इज मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए नाम कमाना, ये तो बहुत इजी है, बिकम वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड बाय मेनी पीपल। एंड द लास्ट वन इज कीप योर फिट ऑन द ग्राउंड, टू हैव अ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि जमीन से जुड़े रहना, हिंदी में आपने सुना होगा, मीन्स टू बी एंड रिमेन इन अ काम, let me write it down, to be and remain in a calm, stable, sensible and pragmatic, pragmatic means practical, and in a practical state or condition, और not to be subject to extreme emotional reactions, extreme emotional reactions नहीं देने, आपको शांत रहना है बिल्कुल ही, किसी भी सिचुएशन में आपको sensibly और realistic वे में किसी भी सिचुएशन से डील करना है। keep your feet to the ground, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अभी इसको यूज करते हैं इनमें, how to do well at work। So first one is, first you need to get on your foot in the door। सबसे पहले तो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेके आपको वो पहला स्टेप लेना है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लॉन्ग रन में वो आपके लिए सक्सेसफुल प्रूव हो। नेक्स्ट वन इज लर्न टू टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड, वट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू लर्न टू डील विद सम काइंड ऑफ सिचुएशन इन अ काम वे, शांति से डील करना आना चाहिए, वो सीखना होगा। डोंट पिन योर होप्स ऑन अदर्स, खुद की आशाएं दूसरों के साथ में नहीं जोड़ना। इफ नेसेसरी हैव द करेज टू गो इट अलोन, अकेले, हमेशा हर कोई काम अकेले करने की हिम्मत रखो। नेक्स्ट इज डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही जगह पे अपने सारे एफर्ट्स को मत लगा देना, एक ही अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस पे सारी होप्स मत लगा देना। ट्राई टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, बाकी के ऑप्शंस भी खुले रखना। कीप इन विद योर कॉलीग्स, कॉलीग्स के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना, फ्रेंडली रिलेशंस, क्या पता आगे चल के कब काम आ जाए, कब आपको बेनिफिट मिल जाए उससे, यू मे नीड देयर सपोर्ट। नेक्स्ट इज कीप योर ईयर टू द ग्राउंड, keep updated with the recent trends and information, you hear important things on the grapevine, यानी कि चाहे आप गॉसिप्स ही क्यों ना आप तक आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, you have to stay updated with them। if you can make a name for yourself, things will get easier, अगर एक बार आप सक्सेसफुल हो गए, आपका नाम हो गया, थिंग्स जो चीजें हैं वो और भी आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज always keep your feet on the ground, so always remain in a calm, stable, pragmatic and sensible state or condition and do not react extremely। तो ये था हमारा आज का पैसेज और ये हो गया आपकी एक्सरसाइज। you have to complete these blanks।
So this is going to be your today's task. First, you have to write down the directions and then you have to do all the exercises. So guys, thanks for listening and just keep practicing.